معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے نئی پر اسرار کہانی جادوگر۔ میں ٹرین میں بیٹھا ایک دور دراز شہر جا رہا تھا۔ سیکنڈ کلاس کا مختصر سا کمپارٹمنٹ تھا جس میں اس وقت میرے سوا اور کوئی مسافر نہیں تھا۔ شام کا وقت تھا۔ گرد و غبار اور خنک ہواؤں سے بچنے کے لیے میں نے کمپارٹمنٹ کی ہر چھوٹی بڑی کھڑکی کو بند کر رکھا تھا۔ ایک برتھ پر بستر بچھائے لحاف اوڑے بڑے آرام سے لیٹ کر اپنے مقصد سفر پر غور کر رہا تھا۔ ٹرین ایک اسٹیشن پر رکی اور کسی نے دروازے پر دستک دی تو مجھے گرم گرم بستر سے نکلنا بہت ناگوار گزرا۔ اندر ہی سے گرج کر پوچھا، کون ہے؟ دروازہ پھر کھٹکھٹایا گیا۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ایک داڑھی والا شخص ایک ہاتھ میں عصا اور دوسرے ہاتھ میں بیگ لیے بغیر کوئی بات کہے اندر گھس آیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے لباس سے ایک شان ٹپک رہی تھی، چہرے پر ایک روب نمایاں تھا۔ اس نے ایک نظر بھر کر مجھے دیکھا اور ایک سائیڈ ونڈو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کھول دو۔ میں نے لپک کر ونڈو اسکرین اٹھا دیا۔ نہ جانے وہ شخص کیوں مجھے اتنا پسند آیا کہ غصے کے تمام جذبات فوراً ماند پڑ گئے اور اس کی جگہ خواہش پیدا ہو گئی کہ میں اس شخص کی تواضع کروں۔ بڑا اچھا ہوا کہ سفر میں ساتھی مل گیا ہے۔ ونڈو کھول کر میں نے بستر کو جلدی سے استوار کیا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا، تشریف رکھیے۔ بڑے سکون کے ساتھ وہ بستر میں گھس گیا، بالکل اس طرح کے جیسے یہ اس کا اپنا بستر ہے اور اسے حق حاصل ہے کہ وہ جس طرح جی چاہے اسے استعمال کرے۔ اس نے بوٹ تو اتار دیے مگر جرابیں اتارنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ اپنا مختصر سا بیگ اور عصا اس نے پہلے ہی لاپرواہی سے ایک طرف ڈال دیا تھا۔ مجھے اپنی حالت کا احساس نہیں تھا۔ میں اس وقت صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اس شخص کو کس طرح زیادہ سے زیادہ سکون پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایک اخبار فروش لڑکا چند سیکنڈ کے لیے کھڑکی کے سامنے ٹھہرا اور عجیب سی آواز گلے سے نکالی، اخبار رسالے۔ اس کی نظر داڑھی والے شخص پر پڑی۔ داڑھی والے شخص نے اسے دیکھا اور اخبار فروش لڑکا آپ ہی آپ کمپارٹمنٹ کے اندر آ گیا۔ اس نے اخبارات کا بنڈل اس شخص کے سامنے کر دیا۔ اس نے رسالوں میں سے ایک ماہنامہ نکالا اور اس کی ورق گردانی شروع کر دی۔ اخبار والے لڑکے نے 2-3 رسالے اور اٹھا کر اس کے پاس رکھ دیے اور کہا، یہ بھی رکھیے، سفر آرام سے کٹ جائے گا۔ اس شخص نے جواب میں بس یہی کافی ہے قسم کا اشارہ کیا مگر لڑکا بغیر رسالے اٹھائے باہر جانے لگا۔ میں نے اسے روکا اور ان رسالوں کی قیمت ادا کرنی چاہی مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا اور باہر نکل گیا۔ میں سامنے کی برتھ پر بیٹھ گیا اور چند منٹ ایک اضطرابی کیفیت میں اس شخص کو دیکھتا رہا۔ وہ شخص بڑے شاہانہ انداز میں رسالے کی ورق گردانی کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد ایک ایس ٹی دروازے پر نمودار ہوا اور کمپارٹمنٹ کا معائنہ کرتے ہوئے اندر آ گیا۔ اس نے اس بارش شخص سے غالباً ٹکٹ کے بارے میں کچھ کہنا چاہا مگر اسے دیکھ کر سٹ پٹا سا گیا۔ وہ الفاظ کی ترتیب قائم نہ رکھ سکا۔ عجیب بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا، ٹکٹ؟ جی وہ، میرا مطلب ہے کہ بات یہ ہے، خیر آپ آرام فرمائیے، میں چلتا ہوں۔ شاید وہ اپنے خیال میں آپ ہی الجھ گیا تھا، اس سے بات ادا نہ ہو سکی اور وہ اتنی جلدی باہر نکل گیا جیسے اس نے اندر آ کر بڑی غلطی کی ہو۔ میں یوں ہی نیاز مند سا بن کر برتھ پر بیٹھا تھا کہ اس شخص نے مجھے حکم دیا، دروازہ بند کر دو۔ میں نے فوراً تعمیل کر دی۔ اس نے بیٹھ جانے کا حکم کیا تو میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر وہ رسالوں کی ورق گردانی کرتا رہا اور اس کے بعد اس نے انہیں یوں ایک طرف ڈال دیا جیسے کہہ رہا ہو، پسند نہیں۔ پھر مجھ سے بولا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے جلدی سے جواب دیا، جمیل خاکوانی صاحب۔ لفظ صاحب میں اس کی عزت کے اظہار کے طور پر کہنا چاہتا تھا مگر بات اس طرح منہ سے نکلی جیسے خود کو صاحب کہہ دیا ہو۔ دراصل میں بھی کچھ بوکھلا سا گیا تھا۔ اس نے کہا، تم نے میرا نام نہیں پوچھا۔ اب پوچھتا ہوں سر، آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟
ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी। जब उसने जवाब दिया, परिंदों की दुनिया में मुझे शाहीन कहते हैं, दरिंदों की दुनिया में मेरा नाम शेर है और इंसानों की दुनिया का मैं शहनशाह हूँ। और मुझे 100% यकीन हो गया कि ये शख्स जो कुछ कह रहा है सच कह रहा है। मैंने थर्मास निकाला और चाय का एक कप भरकर उसे पेश किया, साथ ही कुछ फ्रूट और स्वीट्स जो रात की चाय के लिए रखे थे हाजिर कर दिए। वो बेतकल्लफ होकर उन्हें खाने लगा। ट्रेन चलती रही और मैं उसकी हर मुमकिन खातर मदारत करता रहा। एक स्टेशन आया और गुजर गया। दूसरे स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो उसने बूट पहने, असा और बैग संभाला और अजराह मेहरबानी मुझसे हाथ मिलाकर नीचे उतर गया। वो अपने रसायल वहीं छोड़ गया जैसे ये उसके थे ही नहीं। जब वो प्लेटफार्म की भीड़ में गुम हो गया तो मुझे यूं लगा जैसे मैं एक नींद से बेदार हो गया हूं। ज़हन ने आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी दुनिया में पलटना शुरू किया और जब मैं अपने होश में आया तो मुझे पता चला कि मैं अब तक हिप्नाटाइज रहा हूं। तेजी से मैंने उस स्टेशन के वाकयात सोचना शुरू किए जहां से वह पुरअसरार शख्स सवार हुआ था। उसका कंपार्टमेंट के अंदर आने का अंदाज, एसटी की बौखलाहट और अखबार फरोश लड़के की फ्याजी वाज़े दलीलें थी कि वो एक माहिर मसमीरियन था। मैंने सोचा कि वो अखबार फरोश भी हिप्नाटाइज होकर उसे रिसाले दे गया था और हिप्नाटाइज्म ही के असर के तहत वो एसटी बौखलाकर बगैर चेकिंग के वापस चला गया था। इतना कुछ सोचने के बाद मैं फौरन उठा और एक कुली को बुलाया और जल्दी जल्दी उसे सिर्फ इतना कहा, ये सामान पैक करके नीचे उतार लो और इसे अपने कंट्रोल में रखो। तुम्हारा नाम और नंबर, जी करमदीन, नंबर 19। मैंने सिर्फ अपना ब्रीफ केस लिया और गिरता पड़ता स्टेशन के एंट्रेंस के पास पहुंच गया। फर्स्ट और सेकंड क्लास के एंट्रेंस पर मुझे वो दिखाई ना दिया तो मैं थर्ड क्लास के गेट पर जा पहुंचा। वहां बाहर जाने वाले लोगों की कतार लगी थी। उस कतार में भी वो मुझे नजर ना आया। जल्दी जल्दी उसे प्लेटफार्म पर लगी भीड़ में ढूंढा, वो वहां भी ना मिला। मुझे अफसोस हुआ कि बड़ी मुद्दत के बाद एक आदमी हाथ लगा था, वो भी गया। मुसीबत ये थी कि मैं खुद परेशान था और सही तौर पर जहन से काम लेने के काबिल ना था। मैं जल्दी से प्लेटफार्म से बाहर निकल आया। अचानक मैंने उसे एक टैक्सी में बैठे हुए देखा। टैक्सी हरकत में आ चुकी थी। उसके पीछे खाली टैक्सियों की एक लाइन खड़ी थी। मैं तकरीबन भागकर दूसरी टैक्सी के पास पहुंचा और उसका दरवाज़ा खोलकर धम से अंदर बैठ गया। ड्राइवर से कहा, जल्दी चलो, अभी जो टैक्सी तुम्हारे आगे गेट से बाहर निकल गई है उसे ओवरटेक करो। गालबन मेरी घबराहट वो टैक्सी ड्राइवर भी भांप गया। कहने लगा, क्या बात करते हो साहब, हमसे तेज तो पिस्तौल भी नहीं चले है। वो वाकई पिस्तौल साबित हुआ। टैक्सी स्टार्ट की और गोली किसी तेजी से चल दिया। टैक्सी स्टैंड के गेट से बाहर निकली तो सड़क पर और बहुत सी टैक्सियों को आते जाते देखा। अब ये पहचानना मुश्किल था कि हमारी मतलूबा टैक्सी कौन सी है। एक टैक्सी को एक बड़े चौक पर एक तरफ मुड़ते पाकर महज क्यास करते हुए मैंने उसकी तरफ इशारा कर दिया और ड्राइवर उसी तरफ घूम गया। मैंने ड्राइवर से पूछा, स्टेशन पर जो टैक्सी तुम्हारे आगे खड़ी थी, क्या तुम उसका नंबर बता सकते हो? उसने जवाब दिया, नंबर तो खैर मैं अपना भी नहीं बता सकता साहब, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। अलबत्ता ड्राइवर बता सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि मैंने उस पर गौर ही नहीं किया था कि मेरे आगे कौन खड़ा है और पीछे कौन। एक क्रॉस रोड अबूर करने के बाद मेरी टैक्सी ड्राइवर ने उस अगली टैक्सी को जा लिया, मगर जब मैंने उस टैक्सी के अंदर देखा तो बड़ा अफसोस हुआ कि वो कोई और शख्स था जिसने अपने पास पिछली सीट पर एक छोटी सी बकरी भी खड़ी कर रखी थी। गुस्से से मैंने हाथ झटक दिया। बेड़ा गर्क, ये वो नहीं, गलत रास्ते पर आ गए, वापस पलटो ड्राइवर, शायद वो दूसरी सड़क पर गया है। ड्राइवर ने टैक्सी की रफ्तार कम कर दी और मोड़ काटने के लिए सिग्नल देते हुए मुझसे कहा, एक बात पूछूं साहब, क्या कोई शख्स आपकी बकरी लेकर भाग गया है? तमीज से ड्राइवर, मैंने उसे झिड़क दिया और वो झीम सा गया। हमें मोड़ काटने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। चंद मिनट इंतजार में खड़े रहे। ड्राइवर हारन पर हारन दिए जा रहा था, लेकिन पास से गुजरने वाली गाड़ियों की कतार में खला नहीं पैदा हो रहा था। मेरा एक एक सेकंड कीमती था। अचानक एक टैक्सी हमारे पास से गुजर गई और मैं उसमें बैठे हुए शख्स को पहचान कर उछल पड़ा।
वो मेरा वही पुर इसरार हम सफ़र था। मैंने खुशी से ड्राइवर के कंधे पर हाथ मार दिया। ये है वो टैक्सी। ड्राइवर ने पहले तो मेरी तरफ घूर कर देखा, फिर आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा, ये टैक्सी नहीं है साहब, मेरा कंधा है। खैर कुछ भी है, आगे बढ़ो, इसे जाने मत दो। और ड्राइवर ने अपनी टैक्सी उसके पीछे लगा ली। सड़क पर और भी बहुत सी गाड़ियां आ जा रही थी। मैंने कहा, रश में टैक्सी उसके साथ लगाए रखो। जब निस्बतन कम ट्रैफिक वाली सड़क पर पहुंच जाओ तो फासला बढ़ा लेना। क्या तुम इस टैक्सी में बैठे हुए आदमी को पहचानते हो? सिर्फ इतना पहचानता हूं कि वो एक आदमी है। मैं मुस्कुरा दिया। तुम खासे जिंदा दिल आदमी हो। मैं मजाक पसंद करता हूं, मगर सिर्फ उसी वक्त जब ड्राइवर ने मेरे मुंह से बात छीन ली, बेड़ा गर्क ना हो रहा हो। और मैं हंस दिया। अगली टैक्सी मजीद 2-4 मोड़ मुड़ने के बाद एक ऐसी खुली सड़क पर आ गई जिस पर चलने वाली गाड़ियों की तादाद बहुत कम थी। मैंने ड्राइवर को फासला बढ़ा देने के लिए कहा। कुछ और आगे चलकर एक साफ सुथरा इलाका शुरू हो गया। मकानात की तरतीब बड़े सुलझे हुए अंदाज में थी। हर 2 कतारों के दरमियान घास के छोटे छोटे खुशनुमा पार्क बने हुए थे। कहीं कहीं उनमें टोलियों की शक्ल में बच्चे मिलकर खेल रहे थे। अगली टैक्सी कोई 2 फरलांग चलने के बाद एक छोटे से खूबसूरत मकान के सामने जाकर रुक गई। मैंने अपनी टैक्सी बड़ी सड़क से मुड़ते ही रुकवा ली और उसके अंदर बैठे बैठे अपने हम सफ़र की अगली हरकत का इंतज़ार करने लगा। वो टैक्सी से उतरा और मकान के अंदर चला गया। चंद लम्हों बाद जब अगली टैक्सी मुतहरक हो गई तो मैं टैक्सी से उतरकर पैदल चलता हुआ उस मकान के पास पहुंच गया। उसे गौर से देखा। नीम प्लेट पर प्रोफेसर दिलावर का मुख्तसर सा नाम तहरीर था। इर्द गिर्द के दूसरे मकानात का जायजा लेता हुआ मैं वापस अपनी टैक्सी के पास आ पहुंचा और अंदर बैठकर ड्राइवर से कहा, वापस रेलवे स्टेशन। ड्राइवर मुझे चंद मिनट के अंदर अंदर रेलवे स्टेशन ले आया। कुली ने मेरा सामान जमा नहीं कराया था। वो एक बेंच पर सामान रखे मेरा इंतजार कर रहा था। ड्राइवर और कुली ने मिलकर सामान टैक्सी में रखा और मैं एक होटल में आ गया। मैंने वो रात होटल में गुजारी, कुछ सोकर और कुछ ये सोचते हुए कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। एक अरसा तक मैं जिस शख्स को तलाश करता रहा था अब मेरे सामने था। एक उम्मीद बार आवर हो सकती थी, एक ख्वाब ताबीर में ढल सकता था, मगर किस तरह? होटल में आते ही ट्रंक कॉल करके मैंने अपने तवील सफ़र की मकसद की जिम्मेदारी एक शख्स के सुपुर्द कर दी और एक कमरा लेकर उसमें नहा धोकर चाय पीने के बाद ताज़ा दम होकर कोई मुनासिब हल तलाश करने के बारे में सोचने लगा। अगली सुबह मैं नाश्ता करके उसी इलाके की तरफ चल दिया। टैक्सी बड़ी सड़क पर ही छोड़ दी और खुद पैदल उन मकानों का रुख किया जिनमें प्रोफेसर दिलावर का मकान भी शामिल था। उसके मकान के सामने घास का एक प्लाट था और उसकी दूसरी तरफ वाली सड़क पर आकर मैं रुक गया और यूं ही उस मकान को देखने लग गया। 8 साढ़े 8 बजे होंगे जब एक जवान लड़की हाथों में किताबें संभाले मकान से निकली और सड़क पर होली। बड़ी सड़क पर जाकर वो मकानात के पीछे उजल हो गई। मैं वहां काफी देर खड़ा रहा। मेरे अकब में एक कमरे में 2 नौजवान लड़के काफी देर से मुझे मशकूक निगाहों से देख रहे थे। वो बाहर निकले और मेरे पास आकर बोले, आपको किसी से मिलना है? मैंने इनकार किया तो पूछा, आप कब से सामने वाले मकान को देख रहे हैं? कोई खास बात है क्या? मैं कुछ घबरा सा गया। कोई खास बात नहीं, मुझे किराए पर एक मकान की ज़रूरत है। तो वो मकान वो नहीं, इस तरफ है, आपके पीछे। घूमकर जो देखा तो एक मकान पर टू लेट की तख्ती लटकती नजर आई। मैंने उससे किया तो बहाना था, मगर टू लेट की तख्ती देखकर उस बहाने को हकीकत में बदल देने का ख्याल पैदा हो गया। ये मकान मेरे मकसद में मददगार साबित हो सकता था। अच्छा। दूसरे दिन की शाम आई तो मैं उस मकान में एक किराएदार की हैसियत से सेट हो चुका था। मुख्तसर सा फर्नीचर मकान में पहले से मौजूद था और उससे जायद की मुझे ज़रूरत ही ना थी। 15-16 दिन में उस मकान में रहकर प्रोफेसर दिलावर की नकरो हरकत का मुताला करता रहा, इर्द गिर्द के माहौल को समझता रहा और एक मुनासिब हल के बारे में सोचता रहा। कई बार दिल चाहा कि सीधा जाऊं, उसे बाहर बुलाऊं और उससे दरख्वास्त करूं कि अज़राह एहसान मेरी मदद करे।
मगर फिर ख्याल आता नामुमकिन है कि वो मेरी बात मान जाए। आखिर वो एक कुव्वत का मालिक है और जानता है कि ये इतनी सस्ती नहीं कि हर खासो आम को फैज़याब करता फिरे। एक दूसरा ख्याल जो मेरे जहन में आया वो ये था कि मैं तोहफे तहफ़ का रास्ता अख्तियार करूं, मगर ये बात भी दिल को लगती नहीं थी। मुश्किल था कि वो इस तरीके से भी ज़ायरे दाम आ सके। हो सकता है कि वो रुपये पैसे की पेशकश का गलत मतलब ले ले और बुरा मान जाए, या मुमकिन है वो मेरी पेशकश अपनी कुव्वत करिश्मा समझ ले और मैं बात भी खो जाऊं, अल्तजा करके का नमूना बन जाऊं। प्रोफेसर दिलावर सुबह सवेरे मकान से निकलता नजर आता और रात गए वापस लौटता। अगर किसी दिन वो वापस ना भी आ सकता तो दूसरे दिन रात होने से पहले वापस आ जाता। तालिबे इल्म लड़की सुबह 8:30 बजे घर से निकलती और स्कूल या कॉलेज के बंद होने पर घर आ जाती। उसके अलावा मुझे कोई शख्स मकान के अंदर जाता आता नजर ना आया। एक दो बार ताकुब करके मैंने प्रोफेसर दिलावर की मसरूफियात का पता चलाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। बाद औक़ात वो किसी शानदार से मकान में दाखिल होता तो घंटों भी बाहर ना आता। खदशा था कि मैं उसके नोटिस में आ गया तो बात बिगड़ जाएगी। एक दिन एक बच्चे से मैंने उस मकान के मुतल्लिक मालूमात हासिल करना चाहिए, मगर वो इतना छोटा था कि कुछ भी ना समझ सका। सिर्फ ये पता चल सका कि तालिबे इल्म लड़की प्रोफेसर दिलावर की लड़की है और उसका नाम परवीन है और उसकी एक माँ भी है। उससे ज़ायद मालूमात बड़ी कोशिश के बावजूद भी मैं कहीं से हासिल ना कर सका। काश मुझे कोई ऐसा शख्स मिल जाता प्रोफेसर दिलावर जिसकी हर बात मानने पर मजबूर होता। काश प्रोफेसर दिलावर की ज़िंदगी में कोई मसला, कोई उलझन होती और उसे सुलझाना मेरे बस की बात होती। ऐसे ही सोचों के दरमियान अचानक एक ख्याल जहन में चमक उठा, मगर ये इतना मज़का खेज था कि उस पर अमल करने के बारे में सोचते हुए भी मुझे हंसी आ गई। लेकिन उसके बगैर कोई दीगर सूरत नज़र नहीं आती थी। एक मौहूम सा यकीन पैदा हुआ था कि आखिर उस पर सोच समझ कर अमल करूं तो हो सकता है कि कामयाब हो जाऊं। अपने इस ख्याल की ऊंच नीच सब सोचने में मेरे घंटे सिर्फ हो गए। बड़ी देर के बाद आखिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस ख्याल को अमली जामा पहनाऊंगा। उसके अलावा और कोई तदबीर सूझ ही नहीं रही थी। चुनाचा उसके हर पहलू पर सोचने के बाद मैंने अपने दोस्तों का तस्वर में जायज़ा लेना शुरू कर दिया। मुझे एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत थी जो इस पचीदा और भोंडे मंसूबे में मेरा मददगार बन सके। एक के बाद एक दोस्त की सूरत मेरी नज़रों में आती गई और हटती गई, और जब एक नाम ज़हन पर उभरा तो ख्यालात का सिलसिला ठहर सा गया, जहांगीर मेहदी। ये मेरा एक ऐसा दोस्त था जो मेरे हर जायज़ और नाजायज़ अमल में मेरे साथ ताउन कर सकता था। आज़ाद ख्याल, लापरवाह, अंजाम से बेखबर होकर काम करने का आदी। मुझे हर तरह उस किरदार के लिए फिट नज़र आया। वो इन दिनों ज़र्री यूनिवर्सिटी में BSc फाइनल का स्टूडेंट था। मैंने ज़रूरी तैयारी की और उसके शहर की राह ली। शाम हो गई थी, परिंदे आशियानों की तरफ लौट रहे थे जब मैंने उसके कमरे के सामने कदम रोके। दरवाजे पर चंद बार उंगली बजाई तो अंदर से जहांगीर की आवाज़ आई, यस कम ऑन। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और अदाब बजा लाया। अर्ज किया है, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूं मैं। मगर दूसरा मिसरा जहांगीर ने पूरा नहीं करने दिया। लपक कर उठा और गले मिलने का बहाना करते हुए पकड़कर बड़े जोर से मुझे बेड पर दे पटका। मेरे हाथ से ब्रीफ केस छूट गया। जहांगीर मेरे ऊपर चढ़ बैठा और पहलुओं पर घोंसे बरसाने लगा। मैं चिल्लाया, एहतजाज एहतजाज, जारहीद के खिलाफ एहतजाज। मुझे दयारे गैर में मारा जा रहा है। मगर वो उस वक्त तक थक कर हटा जब कंटीन का बेरा कमरे में रखे हुए चाय के खाली बर्तन लेने आया। जहांगीर ने मुझे छोड़कर सांस दुरुस्त की और बेरे को आर्डर दिया, हर वो चीज़ ले आओ जो इस वक्त कंटीन में दस्तयाब हो सकती है। मैंने गिरा लगाई, मसलन देगचे, चमचे, मर्तबान, सिगरेटों के खाली डब्बे, और कमरा कहकों से गूंज उठा। रात 10 बजे तक ये कहके जारी रहे। 10 बजे के बाद जब नींद की डोरियां आंखों में ज़ाहिर होने लगी तो मैंने कहा, जहांगीर, इस बार तुमसे मिलने का मेरा एक ख़ास मकसद है। मसलन उसने पूछा, सुबह बताऊंगा। इस वक्त नींद भी आ रही है और तुम संजीदा भी नहीं हो।
نہیں میں سنجیدہ ہوں، تم بولو۔ نہیں، وہ بات اس قدر اہم ہے کہ تم رات بھر اس کے لیے اپنے ذہن کو استوار کر لو۔ عجیب بات ہے، کچھ پتہ تو چلے کس نوعیت کی بات ہے۔ بس ہے ایک بات، پہاڑوں سے لہر نکالنے جیسی بات۔ تم خواہ کتنی ہی ضد کرو، میں اس وقت نہیں بتاؤں گا۔ اس نے بڑی ضد کی، ہر طرح سے پوچھنا چاہا، مگر میں نے صبح سے پہلے بتانے سے انکار کر دیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ غسل وغیرہ کرنے کے بعد ناشتہ کرتے ہوئے وہ میرے سر پر سوار ہو گیا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ کیا تم سننے کے لیے تیار ہو؟ میں نے پوچھا۔ پوری طرح۔ وہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا اور میں آرام سے گھونٹ پر گھونٹ چائے پیتا رہا۔ چائے ختم کر کے میں نے پیالی ٹیبل پر رکھ دی اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ایک قتل کرنا ہے۔ ایک دو لمحے وہ خاموش تھا، میرے منہ کو دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا تم قسم کھا سکتے ہو کہ تم مذاق نہیں کر رہے؟ میں نے کہا، قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے جہانگیر، تمہیں یقین کر لینا چاہیے۔ وہ میرا چہرہ پڑھنے میں مصروف تھا۔ جب وہاں اسے متانت ہی متانت نظر آئی تو بولا، اب اگر یہ مذاق بھی ہے تو میں اسے یقین کی نظروں سے دیکھتا ہوں، لیکن مجھے شک تمہاری بات میں نہیں، تمہاری ذات میں ہے۔ تم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ خیر، کل تم نے آتے ہی کیوں نہیں بتا دیا؟ اب چلو۔ اس نے اس انداز میں بات کی جیسے مقتول باہر برآمدے میں قتل کیے جانے کے انتظار میں بیٹھا ہو۔ میرا پیار اکٹھا ہوتا گیا اور پھر میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے یقین تھا جہانگیر کہ تم یہ نہیں پوچھو گے کہ قتل کیوں، کیسے اور کہاں کرنا ہے، مگر ٹھہرو، کوئی تیاری وغیرہ کرو، بہت لمبا سفر طے کرنا ہے، ایک اجنبی دیس کی بات ہے، تفصیلات وہیں پہنچ کر بتاؤں گا۔ لنچ قبل از وقت کر کے ہم نے اپنا سفر شروع کیا۔ کافی رات جا چکی تھی جب میں جہانگیر مہدی کے ساتھ پروفیسر دلاور کے شہر پہنچ گیا۔ ایک ہوٹل میں کمرہ لے کر رات کے بقیہ لمحے بسر کیے اور ابھی پو نہیں پھٹی تھی کہ میں جہانگیر کو لے کر اس مکان میں پہنچ گیا جو میں نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ سورج نکلنے ہی والا تھا۔ دروازہ بند کر کے میں نے جہانگیر کو اس کھڑکی کے سامنے بٹھا دیا جو پروفیسر دلاور کے مکان کی طرف کھلتی تھی۔ جعلی ہونے کی وجہ سے کمرے کے اندر کا آدمی باہر سے نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے جہانگیر سے کہا کہ باہر کا جائزہ لیتا رہے، خصوصاً سامنے وہ جو مکان ہے نا، اس میں آنے جانے والوں کو نگاہ میں رکھے۔ کوئی 8:20 کے لگ بھگ پروین کتابیں سنبھالے کالج جانے کے لیے نمودار ہوئی۔ میں نے جہانگیر سے کہا، اچھی طرح پہچان لو، خوب غور سے دیکھو، ذہن میں اس کی تصویر جما لو، یہی مطلوبہ ہستی ہے جس کے لیے میں تمہیں اتنی دور سے لایا ہوں۔ چند منٹ جہانگیر اس کے نقوش ذہن میں بٹھاتا رہا، پھر گھوم کر حیرانی سے بولا، مگر یہ سب کیا ہے؟ اس معصوم نے تمہارا کیا قصور کیا ہے؟ میں نے جہانگیر کو کھڑکی کے سامنے سے ہٹاتے ہوئے وہ کھڑکی بند کر دی اور کہا، اس نے مجھے قتل کر دیا ہے۔ دت تیرے کی جان ہی نکال دی تھی۔ میں کل سے دوستی کا نازک آبگینہ سنبھال کر تھک گیا ہوں، مبادا میرا استقلال قائم نہ رہے اور یہ آبگینہ چوری ہو جائے، اور یہ بہروپیہ کہیں کا ایک چھوکری دکھانے یہاں لایا ہے۔ یونیورسٹی لے جا کر تمہاری ایسی خبر لوں گا کہ آئندہ مذاق کا نام تک نہ لوگے۔ میں نے کہا، جہانگیر مہدی میرے دوست، یہ مذاق نہ سمجھو۔ سنو، میں تمہیں پوری بات سمجھاتا ہوں۔ اگر میں تمہیں ذہنی طور پر اتنا تیار نہ کرتا تو وہ کام جو میں تمہیں بتانے والا ہوں کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوتے۔ تاہم وہ کام قتل سے کم نہیں۔ بات یہ ہے کہ تم مجھے بیوقوف کہو یا پاگل، مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ تم حیران بھی ہوگے اور تمہیں افسوس بھی ہوگا یہ جان کر کہ میں اس قدر پست کردار بھی ہو سکتا ہوں، مگر مجھ سے پوچھو، دل آنے کی بات ہے، کون کہہ سکتا ہے کس وقت آ جائے؟ جب پہلو سے نکلتا ہے تو شخصیت نہیں پوچھتا، وقار کا لحاظ نہیں رکھتا۔ میں نے اس لڑکی کو گاڑی میں دیکھا تو ہوش قابو میں نہ رکھ سکا۔ اب یہ میری زندگی کا سوال بن گئی ہے، میں اسے ہر قیمت پر حاصل کروں گا۔ 16 دن میں سے میں اس کرائے کے مکان میں پڑا ہوں، ہر مہذب صورت کی کوشش کر چکا ہوں مگر ناکام رہا۔ اب تمہاری مدد چاہتا ہوں۔ چند ثانیے ٹھہر کر میں نے پھر کہا، اب تمہیں کرنا یہ ہے کہ کسی تنہا سی جگہ پر اس پر دست درازی کرو اور اس انداز سے کہ جیسے تم کوئی ماہر قسم کے اوباش انسان ہو۔ میں اس کی عزت بچانے کے لیے تم سے الجھ پڑوں گا۔ اچھی بھلی لڑائی ہوگی، بے شک معمولی زخم بھی آ جائیں،
कुछ कपड़े भी फट जाएं तो परवाह नहीं, फिर तुम्हें हार तस्लीम करते हुए मैदान से फरार इख्तियार करना होगा और मेरे लिए बाकी काम बहुत आसान हो जाएगा। जहांगीर मेहंदी ने जो हंसना शुरू किया तो हंसता ही चला गया। हंसते हंसते उसकी आंखों में पानी छलकाया, कहने लगा, फिर चंद लोग इकट्ठे हो जाएंगे और दोनों को वो मारेंगे कि दिल पहलू में खुद ब खुद वापस आ जाएगा। मैंने कहा, सिर्फ यही एक खतरा नहीं, और भी कई खतरात हैं जिन पर हमने गौर करना है। मसलन केस से पहले तुम्हें रूपोश रहना होगा कि कोई तुम्हें देख ना सके। एक ऐसी जगह का इंतखाब करना होगा जहां हम बाआसानी ये ड्रामा खेल सकें, और केस के बाद फौरन ही तुम्हारा ये शहर छोड़ जाने का बंदोबस्त वगैरह वगैरह। मगर पहले तुम किसी तरह तस्लीम तो करो कि यह मजाक नहीं, ऐसा करना ही है। काफी देर के बाद मैं उसे तैयार कर सका, ये ड्रामा खेलना ही है। जब वो उसके लिए तैयार हो गया तो मैंने उस पर गौर करना शुरू कर दिया। शाम तक हम उसके हर पहलू पर बहस करते रहे, तमाम मुश्किलात समझते रहे और उनका हल तलाश करते रहे। रात तक हम हर तरफ से तैयार हो चुके थे। दूसरे दिन मैंने परवीन का मोहतात ताक़ुब करके एक ऐसी जगह भी तलाश कर ली जो उसके खेल के लिए मौजूद तरीन थी। परवीन कॉलेज से आते हुए अपने रास्ते को मुख्तसर करने के लिए चंद खेतों में से गुजरने की आदी थी, और उन खेतों में रास्ता एक नशीबी जगह में से होकर गुजरता था। ये जगह सुनसान भी थी और महफूज भी। जहांगीर मेहंदी 2 दिन रोपोश रहा कि इसके बाद फरार के लिए उसके सामने कोई दुश्वारी नहीं थी। वो किसी भी टैक्सी या बस के जरिए फरार होकर गायब हो सकता था। तीसरा दिन हमारे उस ड्रामे का दिन था। रात को मैंने जहांगीर को वो जगह दिखाई थी। वहां रास्ते से हटकर चंद गज के फासले पर दरख्तों का एक झुंड था। एक पगडंडी उन दरख्तों से निकलकर रास्ते से आ मिलती थी। मुकर्ररा वक्त से कुछ देर पहले जहांगीर को उन दरख्तों में परवीन का इंतजार करना था और उसके आने पर उस पगडंडी से होकर उस बड़े रास्ते पर आ जाना था, जबकि परवीन के सामने वाले रास्ते से मुझे आना था। तीसरे दिन ठीक मुकर्ररा वक्त पर ड्रामा शुरू हो गया। परवीन अभी नशीबी जगह से चंद गज दूर ही थी कि जहांगीर दरख्तों से निकलकर पगडंडी से होता हुआ बड़े रास्ते पर आकर उसके साथ हो लिया। कमीज के आध खोले बटन, पैंट का एक पाजामा चढ़ाए और बाल बिखराए वो उस वक्त तो हू बहू किसी मैखाने का रिंद बलानोश मालूम हो रहा था। और उसने परवीन को मुखातब किया, आप अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। परवीन ने शर्मो हजाब से सिमट कर उसे देखा तो जहांगीर ने फिदियाना अंदाज में सलाम कर दिया और कहा, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। उसने दुपट्टे को अच्छी तरह सर पर ओढ़ लिया और कदम तेज कर लिए। ठीक नशीबी जगह में पहुंचकर जहांगीर ने सामने आकर उसे रोका और उसने बचकर निकलना चाहा तो उसका दुपट्टा पकड़ लिया। परवीन ने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो दुपट्टा फट गया। जहांगीर ने आगे बढ़कर उसे दोनों बाजुओं से पकड़ लिया। परवीन इस कदर बस हवास हो गई थी कि किताबें उसके हाथ से गिर पड़ी। चेहरे का रंग सुर्ख हो गया था और सांस उखड़ सी गई थी। बदहवासी में उसने जहांगीर को 2-3 थप्पड़ जड़ दिए, मगर जहांगीर ने उसे छोड़ा नहीं। ठीक वो लम्हा था जब मैं बीच में आ गया। एक जोरदार धक्का देकर मैंने जहांगीर को परवीन से अलग किया और कहा, सूरत से ही वैशी मालूम होते हो। जहांगीर ने एक लम्हा मुझे घूर कर देखा और उसकी आंखों में वाकई सुर्खी की परछाइयां थी। मुझे शक गुजरा कि कहीं कम अकल वाकई पीकर तो नहीं आ गया। एक कदम आगे बढ़कर उसने मेरे जबड़े पर घौंसा लगाया तो दिमाग चकरा गया। मैं किताबों से स्लिप होता हुआ गिर पड़ा। मुझे एक लम्हे को ख्याल गुजरा कि अब 2-3 दांतों की खैरियत नहीं। फिर उसने आगे बढ़कर 2-4 घौंसे और जड़ दिए। गिरबान पकड़कर इस अंदाज में झटके दिए कि कमीज फट गई। फिर इतनी शानदार एक्टिंग से एक किताब से खुद स्लिप होकर मुझे संभलने का मौका दिया और उसे दाद देने को जी चाहा। मैंने फौरन पलट कर हमला किया और इस सूरत से कि जहांगीर को संभलने का मौका न दिया। दरअसल वो खुद भी संभलना नहीं चाहता था। 4-5 घौंसे खाने के बाद वो लड़खड़ाया और पीछे हटता हटता भाग खड़ा हुआ। मेरे मुंह से खून बह निकला था, जिसने फटी कमीज पर गिरकर मेरी हालत एक ऐसे फिल्मी हीरो की सी बना दी थी जिसे मेकअप की जरूरत ना रही हो। मैंने हालत संभाली। परवीन कुछ किताबें संभाल चुकी थी।
कुछ संभाल रही थी और मैं उससे लापरवाह होकर यूं वापस चल दिया, जैसे मैं उसकी खातिर नहीं, किसी अपने अनाथ का बदला लेने के लिए जहांगीर से लड़ पड़ा था। ड्रामा 100% कामयाब रहा। हम उसकी रिहर्सल जिस तरह करते रहे थे, उससे भी बढ़कर परवीन ने जल्दी जल्दी किताबें संभाली और मेरे पीछे पीछे चल दी। वो मुझसे चंद कदम पीछे चल रही थी। मेरा खाक आलूद लिबास, फटी हुई कमीज, मुंह से बहता हुआ खून और आंखों के नीचे वर्म उसे बहुत कुछ कह रहे थे। वो थोड़े दूर तक मेरे पीछे पीछे चलती रही। फिर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उसने कदम तेज करके फासला कम करने की कोशिश शुरू कर दी हो, और था भी यही। वह मुझसे बस 2 गज ही के पीछे और एक पहलू में होकर चल रही थी। मुझे यूं लगा कि जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। मैं उससे बिल्कुल बेनियासा होकर जा रहा था। 1-2 बार उसकी हमक मैंने साफ सुनी, जैसे बात उसके मुंह तक आकर पलट गई हो। फिर उसने हिम्मत करके कह ही दिया, मैं आपको पहचानती हूँ, आप हमारे पड़ोसी हैं। मैंने एक निगाही गलत अंदाज से उसे देखा और फिर नजरें हटा लीं। वो काफ़ी देर तक खामोश रही। जब मकानात के करीब सड़क पर मुझसे अलग होने लगी तो कहा, मेरा नाम परवीन है। मगर मैं अपने कामयाब ड्रामे का मुआवजा इन चंद अल्फाज में वसूल करने पर कतन राजी न था। सो बगैर कुछ जवाब दिए अपने मकान की तरफ मुड़ गया।